Welcome back, beta. We are back with chapter 12 continued for the second class, right? So in the first class we have started balance of payment. I made you to understand the definition. आपको याद है? I hope आपने याद कर लिया, easy लगी आपको. So here is quickly we have the definition for you. Again, BOP is an accounting statement regarding economic transactions between normal residents and rest of the world during a fiscal year, right? Then I have asked you two questions in the last video. Remember, दो क्वेश्चन पूछे थे आपसे. Quickly, remittances from abroad, debit or credit? Very good, you gave the correct answer. Credit, क्योंकि पैसा आ रहा है. What is remittances? Suppose I am working in abroad and my parents are staying in India. मैं उनको पैसा भेज रही हूँ. That is remittances. Okay बेटा? So पैसा इंडिया आ रहा है तो that is credit. Loan taken by Pakistan from India. पाकिस्तान को तो वैसे हमें लोन देना ही नहीं चाहिए. चलो दे दिया है तो वो क्या होगा बेटा? डेबिट, क्योंकि फॉरेन करेंसी इज गोइंग फ्रॉम इंडिया. वेरी गुड, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, components of balance of payment. So as you can see, there are how many components? Two components, current account and capital account. There is also a third component which you will study later when you do your graduation and all, that is error and omission. ओके कुछ भी एरर कुछ रह जाता है, कुछ रेक्टिफिकेशन होता है, वो उसमें हम अकाउंट में करते हैं. एज ऑफ नाउ अभी आपको दो ही पढ़ने हैं बेटा, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अकाउंट की. करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज करंट अकाउंट? सो करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन इनकम, that records the changes in income level of the country during a year. That is current account, जो income changes को record करता है, right? So basically it is which concept? Flow concept है, क्योंकि change होते रहते हैं ना income, कभी income है कभी expense है, उनको record करता है. That is current account. And whereas capital account it records changes in assets and liabilities, कि assets and liability position में क्या change आ रहा है उनको record करते हैं ये. And as we all know, asset and liabilities position it relates to stock concept. तो आपसे कभी कोई पूछेगा BOP is flow और stock, क्या होगा आपका आंसर? Yes, flow. Why? Because अगर दो में से एक एस्पेक्ट भी flow है तो it will become automatically flow. Okay? चलिए तो अब चलते हैं, सबसे पहले करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं. आइए, तो नंबर 1 हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, जिसमें हमने बोला ये वो अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस विच रिलेट और विच चेंज द इनकम पोजीशन ऑफ द कंट्री, राइट? अब इसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं बेटा. सबसे पहला ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम एक और अकाउंट के नाम से जानते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. What is trade here? Trade here means merchandise. What is merchandise? Merchandise is export of and import of goods. Only goods, not services, which you can see, which you can touch, which are also known as visible items. तो export import of goods या इसको क्या बोलते हैं? Visibles. First item, right? BOT बोलते हैं इसको. सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इसका है करंट अकाउंट में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. तो इसका फॉर्मूला क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड का? बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सो अगेन दिस ऑल्सो कैन बी बैलेंस सरप्लस डेफिसिट. अगर जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स उतने इंपोर्ट कर रहे हैं, बैलेंस BOT. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट कम कर रहे हैं, सरप्लस BOT. और अगर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिसिट BOT. सो BOT कैन ऑल्सो बी ऑफ 3 नेचर, balance, surplus and deficit. This is favorable, this is favorable and this is unfavorable, right? Export of goods and import of goods is recorded in balance of trade. अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि export of machinery, so what, where will you record export of machinery? In current account or in capital account? In current account obviously बेटा, क्योंकि country के लिए machinery क्या रहेगा? एक good रहेगा, right? So it will come in the current account, visibles, that is export and import of goods. Okay? कंट्री के लिए मशीनरी एसेट नहीं है. सपोज मैं एक एक्सपोर्टर हूँ जिसका काम ही यही है फॉरेन कंट्रीज़ में मशीन्स बेचना और वहाँ से मशीन्स खरीदना, तो फिर ये एसेट थोड़ी है, तो मेरा प्रोडक्ट है. कंट्री के लिए भी मशीनरी मेरी एसेट नहीं है, राइट? सो इट विल कम इन द करंट अकाउंट विजिबल्स. ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, नो अदर आइटम इज इंक्लूडेड. ओके, देन सेकेंड आइटम इन करंट अकाउंट दैट इज इनविजिबल्स. इनविजिबल्स क्या है?
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शिपिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस, टीचिंग सर्विस, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज किस में आएंगी? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में, विच इज द सेकेंड आइटम इन विजिबल्स, ओके, इन करंट अकाउंट. द थर्ड आइटम इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन वे, एक तरफा है, ये इनकम को इफेक्ट कर रहे हैं, ये भी कहाँ पे आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे. द लास्ट इज इनकम रिसीट एंड पेमेंट, कोई इनकम रिसीट हो रही है बाहर से या कोई पेमेंट कर रहे हैं आप बाहर, ये चार कंपोनेंट्स किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे, राइट? ठीक है, सबसे पहला विजिबल्स, फिर इनविजिबल्स, फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर और इनकम रिसीट एंड पेमेंट. विजिबल्स को क्या बोलते हैं? BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. अगर अब मैं यहाँ से पूछूँ आप में BOT और BOP में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि इट इज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, whereas it is, you will write accounting statement, recording economic transaction, वो सारी definition लिखेंगे, right? Then क्या लिखेंगे? BOT is narrower in concept and BOP is broader in concept. इसमें ज़्यादा items include होते हैं, उसमें कम. You will write include, it does not includes invisibles. Invisibles इसमें नहीं आते, इसमें invisibles आते हैं, right? इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स नहीं आते, इसमें आते हैं. एंड देन इसमें कैपिटल ट्रांसफर्स भी आते हैं और इसमें नहीं आते, राइट? अगर इसमें कोई माइनस है तो आप इसके प्लस से उसे मीट कर सकते हैं. सो अनफेवरेबल BOT यू कैन मीट आउट ऑफ द फेवरेबल BOP. हाउएवर अगर इसमें माइनस है तो इसके प्लस से वो मीट नहीं हो सकता, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP. ओके, चलते हैं आप करंट अकाउंट के स्ट्रक्चर की तरफ. करंट अकाउंट का अगर वो आपको स्ट्रक्चर बोले तो आप कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, राइट, डेबिट, क्रेडिट एंड नेट. लाइक दिस यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट. द रिकॉर्डिंग द फर्स्ट आइटम दैट इज विजिबल्स, यू विल राइट हियर. डेबिट में क्या आएगा बताइए? आना या जाना फॉरेन करेंसी का, याद कीजिए. वेरी गुड. आउटफ्लो. क्रेडिट में क्या आएगा? इनफ्लो. और यहाँ पे आएगा नेट, दोनों का डिफरेंस, दैट इज क्रेडिट माइनस डेबिट, राइट? आया माइनस गया ही तो करते हैं. तो विजिबल्स के लिए आउटफ्लो क्या होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स. और इनफ्लो क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. नेट क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स, दोनों का डिफरेंस. सेकेंड आइटम क्या है? इनविजिबल्स. इनविजिबल्स के लिए क्या होगा? अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और नेट एक्सपोर्ट्स. थर्ड इंपॉर्टेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एक तरफा, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस. जाएगा क्या? ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, राइट? यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड. और नेट में क्या हो जाएगा? द डिफरेंस ऑफ फ्रॉम माइनस टू, राइट? एंड द लास्ट आइटम, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, राइट? डेबिट क्या होगा? रिसीट या पेमेंट? वेरी गुड. पेमेंट्स डेबिट, रिसीट क्रेडिट, यहाँ पे आएगा नेट रिसीट्स. अब इसका टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, टोटल नेट. टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी यही आएगा, इन चारों को प्लस करेंगे तो भी ये आएगा. सो दिस इज समथिंग लाइक ग्रैंड टोटल होता है ना, इट विल मैच फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट? सो दिस इज व्हाट योर करंट अकाउंट. अब यहाँ से मुझे स्ट्रक्चर से ये बताएंगे ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है. ये जो नेट वाली फाइनल वैल्यू है, ये कौन कौन सी वैल्यूज ले सकती है बेटा? इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, राइट? सो व्हेन इट इज जीरो योर करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड, when it is plus your current account is surplus, and when it is minus your current account is deficit. क्या मतलब होता है ये सरप्लस होना या डेफिसिट होना करंट अकाउंट के? क्या आपको पता है कुछ? क्या मतलब होता है इसका? अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है, इसका मतलब आप क्या है? लेंडर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है, मतलब आप क्या है? बोरोवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. इसको आप शॉर्ट फॉर्म्स में भी हम बात करते हैं इसकी. इसको कैसे बोलते हैं हम? कैड और कैश. करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, करंट अकाउंट सरप्लस CAS, राइट? दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस.
एंड इफ इट इज बैलेंस दोनों बराबर हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 10 यहाँ पे क्या है, गोल अंडा 0, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट, उसके कंपोनेंट्स। उसका एक कंपोनेंट जो है वो एक अलग चीज भी बनाता है, क्या बनाता है, बैलेंस ऑन ट्रेड, BOT, राइट। ये आपने BOT और BOP का डिफरेंस देखा, यहाँ पे आपने देखा उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आर वी क्लियर विद द करंट अकाउंट, राइट। तो हमने करंट अकाउंट कर लिया है, BOT कर लिया है, वो बैलेंस होता है, क्या क्या टाइप्स का होता है वो कर लिया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद कैपिटल अकाउंट एंड वन मोर टॉपिक विच यू विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, कंप्लीटिंग द चैप्टर। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो बिफोर गोइंग। हमारी प्रथा के हिसाब से एक क्वेश्चन, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं। इफ वी हैव, आई एम गिविंग यू अ न्यूमेरिकल, सॉल्व एंड लेट मी नो, ओके। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 100, import of goods 120, export of service 80, import of service 40, and net current transfer balance, that is 5. So you tell me the balance on current account and BOT. चलो ऐड कर देते हैं इसमें। तो आपको मुझे करंट अकाउंट का बैलेंस देना है एक, और एक BOT का बैलेंस देना है। ये फिगर्स को देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, सॉल्व करके रखेंगे इनको। नेक्स्ट वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट एंड वाइंड अप द चैप्टर। ओके बेटा, तब तक के लिए इसको करते रहिए, बाय।